हम्म। अब हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब रिकॉर्डिंग पे ये आ गया है। ठीक है। जी। मैं दो एक चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 10 साल से खोड़ा के अंदर काम किया, और खोड़ा जो था सबसे चैलेंजिंग साइट थी। उसका रीजन ये था कि चुनाव के दौरान थोड़ा मैं, नाउ आई एम रीचिंग 80 तो दे डिसजॉइंटेड हो जाएगा, लेकिन यू कैन मेक आउट द मेजर थीम क्या है इसकी। तो चुनाव के दौरान पिछले 10 साल में मैंने जो अनुभव किया, तो मुझे लगा कि शुरू शुरू में 14 के इलेक्शन में मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी और ऊपर ऊपर इनसे मिलना, एमएलए से मिलना, एमपी से मिलना और मीटिंग अटेंड करना, लेकिन मेरी खुद कितना वोट मैं कलेक्ट कर सकता हूँ वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल सिस्टम में तो केवल कस्टमरी है, ऊपर से सतही है जिसको आप बोलते हैं। तो वी वर नॉट एबल टू डू द जस्टिस टू द सिस्टम वेयर आई शुड कंट्रीब्यूट समथिंग। सो आई टोल्ड जनरल वीके सिंह that I will take on Khoda. Khoda is a population about 5 to 6 lakh people. They stretches up to the 10 lakh and 12 lakh, but actual population is about 7 to 8 lakhs maximum. Now, Khoda is filled with criminals, it is filled with the corrupt people, and it is extremely difficult and frustrating to implement any scheme there. However, it was a challenge to me, and with my background as an army officer, I said I will take on this challenge, and I made an office there. I started sitting there, and I thought whatever scheme is to be implemented is said to be implemented on the ground itself. Now, in Khoda, which is geographically 2 kilometers by 2.5 kilometers, that is the area. One of the most densely populated urban slum, you can say, improved urban slum in northern India, next to Dharavi of the Bombay. Now here, uh, I had to counter because first thing what General V.K. Singh and it was decided along with me that we will pump in lot of funds that will give a positive signal. So we started working on the infrastructure like road, education, health, and many other things. Now, in the meantime, I remained in touch with the National Institute of Urban Development for my study, taking this and to get a study paper from there. Then I, being a member of the Indian Institute of Public Administration, I was getting a lot of help from there. They made a about 20 pages of Khoda's study paper on which every problem was written there. Now coming to the issues like small issues I will take. Then first we took on the health. Now health was in the extreme. Now anybody from the Khoda has to travel about 15 to 20 kilometers to go to the Ghaziabad district headquarters, the district hospital, or to the private hospitals there to get their treatment done. Now I was in touch with the CMO. We had a lot of meeting and told ICMO that we should have some primary health center. Now these primary health center were made long back and they were functioning only at the level of pharmacist. Pharmacist means the man who stores the medicine, who carried out the distribution of the medicine, and that man was the virtual doctor. And they never allowed any doctor to work there properly. Let me this not on the ground. So first thing what I did was I started visiting all the areas. I started getting meetings with the CMO along with the medical officer and the medical staff, and then the thing started moving. The patient started coming. Now the patient fallout was not more than 10 to 15, which reached up to the 100, which was a very. Now 100 patient was to be taken care of. That was also a high figure. You cannot physically take on more than 30 to 40 patient a day because these fellows used to work from 10 to 2. That was the ideal circumstances because the doctors were staying in Ghaziabad, they far away Delhi,
and they will come there, reach by 11 o'clock, 10:30, 11 o'clock, and they will sit for 2-3 hours, distribute the medicine, do the formalities of meeting the patient, and go by. So that was improved. Now, the CMO was very helpful. He said, we will make a model primary health center of our own. So there was a problem of the land. Now, land, we had one community center which was lying vacant. Somehow we had been able to get the land use transferred and converted into the use for hospital. And we got a 4 stories hospital made there. Now it is there on the ground today in Khodda. Now, this is a very unique hospital. Now, what has happened? This hospital had patient OPD in the ground floor. Then we had another OPD at the first floor for the home. कर्नल साहब, आपसे आग्रह है कि इसमें हिंदी में बोलें, क्योंकि कई हमारे साथी हैं जिनको हिंदी थोड़ा आसान है। क्षमा कीजिएगा, हिंदी में बोलने का पूरा प्रयत्न करूंगा, हिंदी में ये बोलूंगा मैं। तो उसमें दूसरे मंजिल के ऊपर जो था, इसमें एलोपैथी के डॉक्टर बैठते थे, और 3rd and 4th मंजिल वाज मेडिकल स्टोर, एंड लास्ट 4th मंजिल वाज फॉर द पेशेंट। तो उसमें 12 बेड लगवाई गई थी, विच वाज स्ट्रेच टू 18 बेड। 18 बेड में वो पेशेंट जो डॉक्टर साहब देखते थे उनको वहीं पर एडमिट करते थे। उनके लिए सारी फैसिलिटीज होती थी, इंक्लूडिंग द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिनको प्रसव वगैरह करने के लिए होता था, तो उनके भी ट्रीटमेंट थे कि वहीं डिलीवरी होती थी। उनको अलग से रखा जाता था 2-3 दिन, एंड देन एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस सिस्टम रखा गया। ये एक एम्बुलेंस वहां पर डिटेल करा दी गई फ्रॉम 102 से। पहले वो एम्बुलेंस वहां थाने वाने में खड़ी होती थी, कहीं दूर है, तो उसके वजह से वो पेशेंट को ले जाते थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबमिट करते थे, और वहां से उनका ट्रीटमेंट होकर के वापस आ जाते थे। तो जिस खोड़ा में ये क्वैक्स, जिसको झोला टाइप डॉक्टर्स बोलते, इनकी भरमार थी। अब नाउ देयर वाज उनके संग हमारा हमेशा मतभेद भी नहीं रहता था, कन्फ्रंटेशन होती रहती थी, टकराव, क्योंकि वो चाहते थे कि सारे पेशेंट उनके पास आए, बिकॉज उनकी रोजी रोटी मारी जा रही थी। यहाँ पर जो पेशेंट इनके ऊपर 1000 रुपए खर्चा करते थे, 15, अब उनका जो है 100 रुपए में काम हो जाता था। एम्बुलेंस फ्री ले जाती थी, दवाई वहां फ्री मिल जाती थी, और उसके बाद आके ट्रीटमेंट होता था। तो ये ग्राउंड के ऊपर जब हुआ, तो उससे थोड़ा सा एक मैसेज गई लोगों में कि हेल्थ सेक्टर जो है इम्प्रूव हो रहा है। एंड मैंने कहा कि 2 जगह और मैंने चिन्हित कराई, और मेरा आइडिया था कि चारों के चारों जगह 15-16 हजार रुपए रेंट मिलता था इनका गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो वहां के लोकल दादा थे, उन्होंने अपने मकान को रेंट पर दे रखा था, और दे वर एक्चुअली कंट्रोलिंग द हेल्थ सेंटर। तो वो मैंने कोशिश करके निकलवाई। आउट ऑफ 4 मैंने 2 को निकलवाया, 2 बाकी रह गए थे। इन द मीन टाइम आई हैड टू मूव आउट फ्रॉम देयर फॉर अदर रीजन, एंड उसके वजह से अब वहां पे थोड़ा सा 2 बिल्डिंगें और बनने वाली हैं, और वो बन जाएंगी तो खोड़ा जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा ऑन द हेल्थ सेक्टर। नाउ हेल्थ सेक्टर सफिशिएंट होने के 2-3 और रीजन है। वहां से बहुत पास में अपोलो हॉस्पिटल इज 1 किलोमीटर फ्रॉम देयर, और बाकी छोटे मोटे हॉस्पिटल नोएडा के भी अवेलेबल रहते हैं, और बड़े हॉस्पिटल, और मैक्स हॉस्पिटल वहां से करीबन 1.5-2 किलोमीटर है, और गाजियाबाद का हॉस्पिटल है जो कि 4 से 5 किलोमीटर में बहुत सारे अस्पताल है। तो इस तरीके से एक हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया। ना जो बड़ा फ्रस्ट्रेशन यूं होता है कि ये सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाती है वहां पे। मैं क्षमा कीजिएगा, ये कटु सत्य है कि सक्सेस स्टोरी इसलिए नहीं बन पाती है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, तो जो स्टेब्लिश्ड हमारे मेडिकल माफिया इन दिस केस बोलिए, या जो वहाँ के लोकल नेता हैं, जो केवल इस धनुगाही करके, इन्हीं सब लोगों से धनुगाही करके अपना जीवन उपार्जन करते थे। मैंने उन नेताओं को देखा जो स्कूटर से मेरे पास आते थे, और 4 साल बाद उनके पास 2-2 फॉर्च्यूनर हो गई, और उनके कमाने के कोई संसाधन नहीं थे, वो केवल दलाली इधर से उधर करना। ये तो इस परिपेक्ष में एक तो हेल्थ सेक्टर से किया। अब आप आ जाइए एजुकेशन सेक्टर पे। नाउ एजुकेशन सेक्टर में हम थोड़े लकी रहे,
हमारे एक पुराने जनरल साहब थे, सीनियर ऑफिसर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मेहता करके थे। तो उन्होंने एक एनजीओ थी जिसमें कि उत्तराखंड से वो ऑपरेट होती थी, उसमें सतपाल महाराज वगैरह थे। तो वो जो थे, एक मिस्टर भार्गव थे इन अमेरिका। ही यूज्ड टू सेंड लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 10 crore पर मंथ, माने दैट वाज द प्रॉमिस्ड मनी। तो ये नदर्न इंडिया को भी उसमें काफी पैसे मिलते थे। तो मैंने खोड़ा में उनको बोला कि साहब हमारा एक स्कूल है, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने एक स्कूल के अडॉप्ट किया। इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने एक तालाब को किया जिसमें हम बनवाना चाहते थे। स्कूल में उन्होंने करीबन 40 से 50 लाख रुपए खर्चा किए। तो उस स्कूल की ये स्थिति थी कि वो बहुत छोटा सा स्कूल, छोटी सी, मुझसे मुश्किल से 150-200 मीटर के अंदर स्कूल था। लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था और वहाँ की जो प्रधानाचार्य थी, जो प्रिंसिपल थी, दे वर वेरी मोटिवेटेड पीपल। तो दे वांटेड, अब उन्होंने देखा कि उनके तो कमरे पुताई हो गए, उनके हर कमरों में 2-2 3-3 फैन लग गए। फर्नीचर जो था हमारे लोकल, बहुत क्लियरली मैं बताता हूँ, एमएलए साहब ने फर्नीचर भेजा 1200 रुपए वाला। अब 1200 रुपए का फर्नीचर जो है 2 महीने चलता है, उसके बाद उसकी बेंच टूट जाती है और वो उठा करके कबाड़े में चला जाता है। तो मैंने इनसे बात किया, तो इन्होंने कहा कि हम आपको साहब फर्नीचर देंगे जो कि मेरे तरफ से होगा। तो एनजीओ की तरफ से जो फर्नीचर आया, ईच बेंच यूज टू कास्ट एंड अलॉन्ग विद इट, बैठने वाला जो 6,500 रुपए की स्टेट ऑफ आर्ट बने। इट वॉज ब्यूटीफुल। हमारे संग क्या प्रॉब्लम उसमें बाद में आई कि हमने तो बोला भाई 500 मंगवा लीजिए, हमारे पास रखने की 350 की थी। तो मैंने एक कमरा जबरदस्ती आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वालों से कब्जा करवा दिया। सॉरी फॉर टेलिंग, मैं अपना ये, लेकिन उनसे मिल करके बोला साहब आप दे दीजिए फॉर 6 मंथ, और उसको परमानेंटली घेर करके वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दूसरी साइड में हो गया। इनको एक एक रूम बन गया, तो 45 लड़के उसमें सेटल हो गए। तो इस तरीके से उसको मैंने 350 किया। और 150 बेंचेस के लिए मैंने शेड बना करके रखवा दिया था कि इसको जब एक 2-3 कमरे बनेंगे, जो कि बनने वाले थे, अभी तक नहीं बन पाए हैं। बिकॉज अगेन सॉरी फॉर आपको बताने में कि जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक्सट्रीमली गुड चैप, वेरी ऑनेस्ट चैप, वेरी, लेकिन उसके जो अकाउंटेंट और नीचे वाले हैं उनको बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। तो उनको तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना करके इस स्कीम को चलने नहीं देते थे। एनीवे, वी हैड बीन एबल टू रन स्मार्ट क्लासेस फ्रॉम देयर। वहां से स्मार्ट क्लासेस चलती है। वहां पर उन लोगों ने कमरों में जो उनकी फर्नीचर एंड इतनी है वो टॉप क्लास की हो गई है। बट दे स्टार्टेड मिसयूजिंग सम टाइम। तो मैंने एक मरतबा पकड़ा साहब, वहां पर मैं गया। तो मैं अक्सर महीने में 2 मरतबे जाता था वहां चेक करने, मिड डे मील का भी और ये वो। तो वहां जब मैं गया तो देखा, तो वहां पर हमारे एक लोकल जनप्रतिनिधि थे, विधायक, उनके बर्थडे के लिए 2 दिन से तैयारी चल रही थी। तो स्कूल वॉज वर्चुअली क्लोज्ड। कुछ लड़के बुला लेते थे 150 दिखाने के लिए कि साहब ये आते हैं, बिकॉज वो मिड डे मील का भी उनको अकाउंटिंग उनके थ्रू हो जाती थी। और ये, तो मैं गया एंड आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड। आई सेड दिस थिंग विल नॉट हैपन। एंड लेट मी, आपको ये बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उस दिन के बाद से वहां पर ये बर्थडे वगैरह का, और मैंने कहा कि यहाँ के शिक्षक एज इट इज उनको बीएलओ की ड्यूटी लगा देते हैं, उनको इधर उधर के कामों में लगा देते हैं। इस तरीके से वो बेचारे देवी चुहैपी के बीएलओ में तो चले जाते थे और यहाँ पढ़ाना नहीं पड़ता था। तो अब वहाँ के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर उन स्कीमों को मैंने उस समय, अब आज से मैं 10 साल पहले की बात है, जो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से अब आ रही हैं, वो स्कीमें हम पहले ही लेके, जैसे स्मार्ट क्लास हुआ या बहुत सारी स्कीमें जो हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, वो सब स्कीमें वहां पर चल रही हैं। एंड दैट स्कूल हैज बिकम ए सिंबल ऑफ, देखने के लिए एक सांकेतिक है। उसी बेसिस पे यूपी गवर्नमेंट ने 2 स्कूलों को सैंक्शन किया। एक स्कूल प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट, अब बाद में उन्होंने 8वीं क्लास तक के लिए कंपोजिट स्कूल बोलना शुरू कर दिया। तो 8वीं दर्जे के लिए 2 स्कूल बना। एक स्कूल के लिए 6.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, एक स्कूल के लिए 5 करोड़ सैंक्शन हुआ। नाउ सैंक्शन में सब हिसाब किताब 2-3 खर्चा हुआ, जो है हुआ लोगों को पेमेंट करने में। क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई ऐसा है कि
5-6 करोड़ आया, तो मैंने उसको, जो कॉन्ट्रैक्टर CNDS वाले बना रहे थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, मैंने उनको बोला कि सीधे सीधे बोला, मैंने कहा मैं IIT दिल्ली और IIT रुड़की को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें, और आप जो है 10% कमीशन से ऊपर अगर गया तो आपके ऊपर मैं इंक्वायरी करवा दूंगा। तो यू विल, आपको बहुत प्रसन्नता होगी, वो 4 मंजिले के इतने बढ़िया स्कूल बने हैं कि उन स्कूलों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। एंड उस स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें स्मार्ट क्लास का है, उसका फर्नीचर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी एवरीथिंग वाज मेड वेरी गुड। और एक वो तालाब टाइप का जगह थी जिसमें उसकी पूरी भरपाई कराई गई, 5-6 फीट की जमीन को भरवा करके, और चारों तरफ से बाउंड्री बना के, जिन्होंने इंक्रोच किया था उनको हटा करके, और 2 स्कूल वहां पर अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे बन गए। अब एक स्कूल रह गया है, उसके लिए भी शायद सैंक्शन हो गया है, क्योंकि ये जो जिस स्कूल को हमने ऑर्डर किया था, इनको तो 3-4 कमरे बनवाने थे तो बनवा देंगे, और बाकी ये आपस में शिफ्ट करके एक दूसरे के ऊपर काम करते रहेंगे। तो ये हुआ वहाँ शिक्षा। और इन स्कूलों में इतने पॉपुलर हो गए थे कि जब मैंने देखना शुरू किया था, तो इस स्कूल में 200 से 250 लड़के एक्चुअल एडमिटेड थे, ग्राउंड के ऊपर 300-350 दिखाते थे। इसके बाद इतने, अब चूंकि आजकल उत्तर प्रदेश शासन ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, 2 ड्रेसेस देती है, और इनको बस्ता देती है, जूता मोजा देती है, तो अब लोगों को लगा किताबें कापियां फ्री आती हैं सारी की सारी, तो पेशेंट की पेरेंट्स की लाइन लग गई साहब। 550 एडमिशन का। अच्छा, किसी के पेरेंट, किसी का एडमिशन आप रोक नहीं सकते, अगर आ रहे हैं तो पेशेंट, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वो एक प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने BSA को, CDO को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इनको 2 पारी में इनकी क्लासेस चलाइए, एक सुबह चलाइए, एक शाम को। आपके 250-300 लड़के सुबह पढ़ लेंगे, 250-300 लड़के शाम को पढ़ लेंगे, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पढ़ाई नहीं होता है। अगेन, मैं एडमिट करता हूँ कि उसमें इन लोगों ने, नहीं सर ऐसे कर देंगे हम, 2 घंटा सुबह जल्दी आ जाएंगे, पढ़ा देंगे, ये करके। जो टीचर की जो टेंडेंसी कि साहब हम सुबह 9 बजे आएंगे और 2 बजे हमको जाना है, तो वो चीज है, बट शायद चेंज हो गया है। इस तरीके से वो करें, तो ये तो हो गई आपकी शिक्षा का। अब जो खोड़ा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लैंड की थी। पूरा खोड़ा जो है ये अनऑथराइज्ड लैंड के ऊपर बना हुआ है। ये बेसिकली, अगर आपको हिस्ट्री में कभी अभिषेक को पकड़ा दूंगा, अभिषेक पास होगा भी, तो थोड़ा में यादवों का ये कॉलोनी थी, और उनके पास करीबन 40-50% जमीन उनके कब्जे में थी। उन लोगों ने बड़ा हिसाब से क्या किया कि जमीन, जो सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर तो अपना मकान बना लिया, और जो प्राइवेट जमीन थी उसको जो है बेच दिया प्राइवेट पार्टी को। तो एक नया रैकेट चला वहां। तो हमने पूरा खोड़ा का सर्वे कराया, और उसमें SDM ने बहुत हेल्प किया, और लोकल रेवेन्यू स्टाफ, क्योंकि पटवारी 2 मरतबे चेंज कराए, 2 पटवारी को सस्पेंड कराया गया, बिकॉज इनकी आमदनी का तो कोई ठिकाना नहीं था। तो जो नया पटवारी आया, वो वट एवर ही वाज डूइंग, तो उससे जब रिकॉर्ड बना, तो आप समझिए कि 3,500 पेज का रिकॉर्ड है खोड़ा का। नाउ एवरी, एक हर लैंड का, जो कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया, हर लैंड का वहां पे रिकॉर्ड है कि कब खरीदी गई, किसने खरीदा, किससे कितने ट्रांसफर हुआ, ये हुआ तब। लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं हो, इसके लिए हमारे टोटल, चाहे सांसद बोलिए, चाहे MLA बोलिए, सब लग करके उस स्कीम को आगे बढ़ने से विफल करने में पूरे जोर लगा के रखा हुआ है। और अब देखिए क्या होता है। मैंने एक एप्लीकेशन 2-3 बनाई, मैं भी हूँ, तो इसको हमने उठा करके न्यायिक विभाग को दे दिया उत्तर प्रदेश के। तो अब वहां से हो सकता है कि काम हो जाए, अदरवाइज सिचुएशन वाज द सेम। इसी तरीके से आप इसको जो है, अभी कितना टाइम हो गया अभिषेक, मैं और बताऊं। हेलो। अभी आपके पास 10 मिनट है, अभी 10 मिनट है। अच्छा ठीक है, जी। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ। दूसरा, जो
1000 करोड़ रुपया लगा करके जो कंस्ट्रक्शन कराया गया, उसमें बड़ी विसंगति रही। विसंगति बिजली विभाग की। वहां पर 2 टाइप के खंभे लगते थे। एक खंभे के ऊपर उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का खंभा होता था, एक नगर पालिका ने अपना खंभा लगा रखा था। और नगर पालिका का जो खंभा था उसमें नगर पालिका की बिजली लगती थी, और जो उनका था उनकी बिजली लगती थी। और ये दोनों आदमी आपस में चूंकि कोऑर्डिनेशन इनका बिल्कुल नहीं था, तो वो कंप्लीट होती थी और जनता सफर करती थी। लाइन मैन जो है बनाते थे। तो मैं जब ग्राउंड के ऊपर घूमता रहता था तो ग्राउंड के ऊपर गया, तो एक जगह मैंने देखा कि एक लाइन मैन को, मैंने शुरू से उसकी शिकायत आ रही थी, तो हम जाके बैठ गए गली में कुर्सी टेबल डाल करके, भैया बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास लिखित 10 एप्लीकेशन आई कि साहब लाइनमैन ने मुझसे 10,000 रुपया लिया, मुझसे 3,000 रुपया लिया, बोला कि साहब आपके छज्जे के सामने से जाती है, छज्जे के सामने से हम हटवाएंगे, लेकिन इसके 3,000 रुपया लगेंगे। तो टोटल अबाउट 45,000 रुपीज। देन आई मेड ए लेटर, और मैंने इनको लोकल चीफ इंजीनियर को दिया, और लोकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खोड़ा के लिए अलग से बैठता था, वो बड़ा चैलेंज। तो खोड़ा में कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता था, क्योंकि जो पुराना सिस्टम में तो इट वाज ए गोल्ड माइन। तो जो भी आता था अपना 2-4 मकान उकान बनवा के निकल जाता था। अब वहां में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 को तो मैं जानता हूँ, दे वर वेरी ऑनेस्ट एंड दे डिड ए ट्रेमेंडस जॉब। खोड़ा में पर मंथ ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ कलेक्शन होता है रेवेन्यू का, तो 24 करोड़। और वहां पर प्लाउ बैक कितना होता था? 3 से 4 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़। तो मैंने बोला कि भाई ये सबसे गई गुजरी कॉलोनी है, इसमें आपको कलेक्शन हो रहा है 20 करोड़ 30 करोड़ का, कम से कम 10-12 करोड़ रुपए तो खर्चा कीजिए, 15 करोड़ रुपए। तो उसमें भी सुनवाई हुई, और अब वहां पर एक अलग से सब स्टेशन बन गया है, और उनके यहाँ पर बिजली में सुधार हुआ है। और दोनों पार्टियां, जो नगर पालिका वाली है जो बिजली का, और ये दोनों अभी काम करना शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये सब ठीक होगा ना। इसको आप लिंक कीजिए नेशनल लेवल पे। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं फादर हमारे गांव हमको जरूर भेजते थे, गांव से मैंने बहुत चीजें सीखी। तो हमको एक चीज वो बताते थे कि देखो गांव में जो पॉलिटिक्स है वही पॉलिटिक्स। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, जो पॉलिटिक्स जो है गांव लेवल की है वही नेशनल लेवल की है। तो यहाँ पर खोड़ा की जो पॉलिटिक्स थी, वो किसी चीज को आगे बढ़ने में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब क्या हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। आपको सिस्टम चेंज करने के 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे राशन कार्ड। राशन कार्ड मैंने बनवाना शुरू किया तो राशन कार्ड का रेट था 500 रुपए पर राशन कार्ड। और दैट वो 500 रुपए तो लेता था सप्लाई इंस्पेक्टर, और बाकी जो दलाल वलाल मिला के वो करीबन 1500 का पड़ता था। तो जो बंदे राशन कार्ड बनवाते थे वो भी सोचते थे कि चलो 6 महीने का राशन या साल भर का होगा, इसके बाद हमारा परमानेंट राशन कार्ड हो गया। उस समय राशन कार्ड से बहुत सारी चीजें मिलना नहीं शुरू हुई थी, जो अब शुरू हुई हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया और मैंने कहा आप लोग अप्लाई कीजिए। तो हमारे पास तो एप्लीकेशन धड़ा धड़ा आती थी, लोग जानते थे कि साहब यहाँ पैसा नहीं लिया जाएगा। तो वो हमारा जो लड़का, सुविधा केंद्र एक मैंने अपने ऑफिस में जन सुविधा केंद्र भी खोल रखा था। तो वहां पर वो 50-30 रुपए था, वो 50-60 रुपए लेता था, भैया दफ्तर चलाता था। और वो जो है 1500 की लिस्ट बना के हमने डीएम को पकड़ा दी कि साहब इनका जरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। आपको ये सुन करके थोड़ा आश्चर्य होगा कि जो वहाँ की लोकल सप्लाई अफसर थी, पहले तो बड़ा, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज़ शी हैज कम फ्रॉम द सम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, कि ये काम करेगी। लेकिन साहब करप्शन वाज सो ऑर्गेनाइज्ड देयर कि उनका खुद जो है करीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ का कलेक्शन हो रहा था। आई वेंट एंड टोल्ड द डीएम, डीएम वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो मैंने कहा देखिए मैं इसका प्रूफ बाद में दूंगा, लेकिन ये हो रहा है, जरा इसके ऊपर आप हल्ला कर दीजिए, मैंने थोड़ा-सा जोड़ दीजिए। तो थोड़ा जोड़ देने पे तो वो 1500 जो दिया, उन्होंने 1500 की उसमें से 1400 रिजेक्ट करके भेज दिया कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो मैंने डीएम को बोला कि आप मुझे एक-एक राशन कार्ड का बताइए कि ये राशन कार्ड में क्या गलती है और कहाँ ग्राउंड के ऊपर गलती किया है। बिकॉज़ जो हमारे लड़के राशन कार्ड बनाते थे वो बड़ा सोच समझ के बनाते थे कि इस राशन कार्ड में क्या है वो गलती। अब वो चुप लगा गई। तो जब डंडा पड़ा तो साहब हमारे 1450 राशन दोबारा उनको मिल गए लोगों को। लेकिन दैट वाज द ओनली अचीवमेंट विद लॉट ऑफ
वहां पर 2-3 राशन कार्ड की दुकान, माफिया जो थे, राशन कार्ड की दुकानें कोई और चला रहा है और नाम किसी और का है। तो मैंने, उसमें रूल्स हैं, उत्तर प्रदेश शासन के नियम हैं कि राशन कार्ड की दुकान केवल किसको किसको मिल सकती है, उसमें सगे संबंधी है। खोड़ा के अंदर 3 सगे भाइयों को 3 दुकानें अलॉट है। इट इज ऑन द ग्राउंड एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन। तो वो तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। तो ये सब विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं भाई साहब कि बताने में भी जरा मुझे बुरा लगता है और आपको सुनने में पता नहीं कितना लगा है। और मैं रिस्क लेके वो इसलिए बोलता हूँ कि मैं राजनीति में आया हूं, तो राजनीति को मैं एक फौजी अफसर की तरह से राजनीति करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक काम करके जो मुझे इतनी ज्यादा पेंशन मिलती है कि मैं साहब वही नहीं खर्चा कर पाता हूँ, तो मैं तो दफ्तर उफ्तर खोल के बैठा था, जो खर्चा होता था मैं चलाता था। एंड आई यूज्ड टू फील ग्रेट, क्योंकि मुझे और कोई शौक नहीं थे। तो ये स्थिति है खोड़ा की। और खोड़ा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अभी चल रहे हैं वहाँ के। राशन का मैंने बता दिया था। आयुष्मान कार्ड जो है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं, आयुष्मान कार्ड इशू कराने में एक रैकेट चला वहां, तो उसमें भी सक्सेसफुल हुए। इसके बाद एक स्कीम चली जिसमें कि आपके पास अगर 20 मीटर की 20 फीट बाई 20 फीट का आपके पास प्लॉट है, तो गवर्नमेंट उसमें अनुदान देती थी 2.5 लाख, और 2.5 लाख अपना लगा करके आप कराइए। तुरंत पता नहीं कहां से रिकेटियर्स चले आए, और उन्होंने खोड़ा के अंदर हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, जो वार्ड लेवल के नेता एंड वार्ड मेंबर बोलिए, इन लोगों ने 2-2, 3-3 हजार रुपए देकर के उठ ले गए। मेरे पास एक पंडित जी थे और एक मेरा खुद का लड़के थे, तो मैंने उन 2 लड़कों से बोला, भैया ये हमारा काम कर दोगे? तो दे वर वेरी हैप्पी। बोला, मैंने कहा मैं तो भैया आपको खाना वाना कभी खिला दिया करूंगा, चाय पिला सकता हूँ। उन सबों ने 150 लोगों को पकड़ा जिनको की गलत रिपोर्ट की गई थी। फिर मैंने जिला अधिकारी के थ्रू मैंने उस अफसर को पकड़ा जो कि ये काम कर रहे, वो मेरे दफ्तर में आ गए, नहीं सर ये हो रहा है, बहुत सही काम कर रहे हैं हम लोग, और मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। मैं उस अफसर का तो खैर उन्होंने ट्रांसफर दिया, नया अफसर आया सेम टाइप, और वो 150 की एप्लीकेशन वहीं के वहीं, डीएम वाज नॉट रेडी। मैंने डीएम को राइटिंग में कवर लेटर भेजा कि मैंने कहा ये 150 आदमियों का आप इंक्वायरी कराइए कि कैसे हुआ है। तो नहीं, एनजीओ वाले भाग गए, सब भाग गए। तो भाई साहब ग्राउंड के ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम चेंज करने में हमारी योगी की सरकार बहुत काम कर रही है। पेंशन के ऊपर 70% इम्प्रूवमेंट हो गया है, आपको मैं बताऊं। नहीं तो पेंशन का अभी बाबू पैसा लेता था तब पेंशन के कागज बनाता था, अब वो ऑनलाइन हो गया, तो डायरेक्टली जा करके लखनऊ अप्लाई करते हैं हम लोग, वहां लखनऊ से पेंशन आ जाती है। और उसमें हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी वगैरह ने बड़ा हेल्प किया मुझे, बिकॉज मैं इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलता रहता था। तो देयर वर सम गुड ऑफिसर्स एंड दीज गुड ऑफिसर्स हैव बीन हेल्पिंग। नाउ गुड ऑफिसर की अब स्ट्रेंथ हो गई 50%, ये भी आपको बता दूं, चाहे वो पीसीएस ऑफिसर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये ऑफिसर्स होते हैं। तो उसके वजह से सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। तो फ्यूचर इज ब्राइट, बट इट विल टेक 10 years। मैं तो अब 80 का होने जा रहा हूँ, प्रॉब्ली आई मे नॉट बी एबल टू सी दैट डे। बट आप लोग जो श्रोता हैं, जो सुन रहे होंगे, वो जो यंग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हम कम से कम एक अच्छे भविष्य के लिए बढ़ रहे हैं। कर्नल साहब पिक्चर आ, नहीं आ रही आपकी, हैं? पिक्चर नहीं आ हेलो। रही, आप नजर नहीं आ रहे। कर्नल साहब नमस्कार। अभी नमस्कार, अब पिक्चर आ गई सामने आपने? हाँ। हाँ अब आ गए। आज तो बड़े दिनों अब बाद नजर आ गए। जी। क्या है? अभी अब सभी लोग ने प्रश्न कर सकते हैं जो आज का विषय है, तो उस जी। पर बारी बारी से प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट मॉडल है जो खोड़ा में 10 साल में विकास हुआ है, जो सभी लोग हाँ मानते हैं कि वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ, और जो हाँ कमियां अभी भी हैं या हाँ। जो इनसे हम सीख सकते हैं और अन्य क्षेत्रों में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इन हम्म विषयों पर पहले मैं ही प्रश्न करता हूं कि हम्म मुझे याद है कि मैं एक ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ था, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए जो लैंड देखी गई थी और जो लैंड के लेकर और जो उसके साइज और जिस तरह से उसमें वो हुआ था, तो अभी हम्म।
ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी जिसमें लोग आके बस गए और लोगों को वहां पे अब रहने को दिया जा रहा है। और दिल्ली में और पूरे देश में ऐसी सैकड़ों कॉलोनी है। खोड़ा इसलिए ध्यान में आता है क्योंकि खोड़ा उनमें सबसे बड़ा है। पूरे दिल्ली जी एनसीआर इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं है अनऑथराइज। जी तो जी जी अभी अभी की स्थिति में जो वहां पर जो ये काम हो रहा है और ये जो करप्शन है, आप कह रहे हैं कि हम्म, इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ हम्म, ये भी बात देखी गई है कि हम्म, जो हमारी राजनीतिक सोच है और कुछ राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ये करप्शन फलता फूलता है, तो ये पार्टी स्तर पे भी इसको उस पर एक्शन लिया जाए और उस पर काम किया जाए। इसके लिए कुछ आपने होते देखा है? हाँ, अभी मैं बता दूं। आई विल टेक, मैं 2-3 मिनट में आपको बता देता हूँ, मगर आपने सारी बात कही। इसमें मैं इन्वॉल्व रहा था। मैंने आपसे देखा चिन्हित अफसर था एक, मेरे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिला, जो कि 237 करोड़ का मैंने बजट बनवाया था इसका। क्योंकि हम होते थे जल्दीबाजी में, तो हमारा राजनीति थोड़ा सी, तो हमको तो इलेक्शन टू इलेक्शन चलते थे। तो मैंने कहा यार, घोड़ा के अंदर पानी जो है इलेक्शन के पहले आ जाना चाहिए। हमारे पास 25 वार्ड है, तो मैंने कहा कम से कम 10 वार्ड में पानी दे दो आप। इसके बाद हम अपना करते रहेंगे, लेकिन एक चिन्हित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, तो वो 237 करोड़ रुपए का आप, मैं 2 मरतबे खुद लखनऊ गया था, और वहां पर फाइल जो है उसको एक चेन थी। फाइनेंस सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, घूम घूम करके वहीं पर घूम रही थी फाइल। बिकॉज 237 करोड़ में किसी को पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी, बिकॉज लोकल इन्वॉल्वमेंट हम लोगों की जो थी, तो उसके वजह से वो फाइल रुकी रही। बाद में वो सैंक्शन हुआ। जो ऑफिसर को लगाया था ही वॉज ए वेरी गुड ऑफिसर, ही वॉज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एंड ही वॉज वेरी गुड फ्रॉम द फैमिली साइड। सो वो हमसे बोला सर मैं आपके संग काम करूंगा, बिकॉज आपको न आपको चाहिए ना मुझे चाहिए। उस ऑफिसर को, यूल सरप्राइज, हैज बीन रिमूव्ड नाउ, आई वाज टोल्ड अबाउट 3 months बैक। और उन्होंने फिर वही घुमा फिरा के उस अफसर को ले आए, जिनसे वो दे कैन मेक वर्क गो ऑन। बट ये स्कीम अब इस लेवल पे आ गई है कि अब इस स्कीम को कोई रोक नहीं सकता है। अब वो बता रहा हूँ, जो झील का प्रॉब्लम था, वो जो 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 पोर्शन आप बता रहे थे जिसके ऊपर कब्जा, उसके ऊपर दीवार बनवाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए का मैंने चीफ इंजीनियर के पास जाकर के प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा दिया था कि साहब इसको आप बनवा दीजिए। और चीफ इंजीनियर वाज वेरी कॉम्पिटेंट, वो उनके साथ विद इन हिज राइट था, उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। और जब वो बाउंड्री बनना शुरू हुई, तो एक फेक हाई कोर्ट का जजमेंट ला करके दिया गया मुझे कि साहब इस पे तो स्टे ऑर्डर है। अब वो चीफ इंजीनियर साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले घबरा गए। बोला साहब आपके ऊपर विश्वास करके हमने कह दिया। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, आप जरा मैं एक्सचेंज को आप भेजिए वहां पे, मैं बात करता हूँ। तो मैंने चीफ प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट से बात किया। उन्होंने बताया साहब इस आदमी ने 11 साल पहले या 10 साल पहले अप्लाई किया था कि इसके ऊपर स्टे होना चाहिए और ये होना चाहिए, और सब फेक डॉक्यूमेंट थे इसके। तो लेकिन क्वेश्चन इज, जब तक आपकी तरफ से काउंटर नहीं जाएगा तब तक हम केस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो मैंने कहा बात तो सही है। तो जब हमने केस को आगे बढ़ाया तो वो आदमी घबरा गया, तो वो उसने अपना इधर उधर घूमना शुरू किया। मैंने कहा आप बाउंड्री बनाओ, ऑब्जेक्शन कोई करेगा तो देखा जाएगा। लेकिन साहब वो आदमी का इतनी हनक थी, और विद लोकल पॉलिटिशियन, कि वो बाउंड्री बट के काम मैंने किया था। मैंने एंगल गड़बड़ा कर वो दिया था, बाउंड्री बनवा दिया था कि और वहां से पानी निकलने का मैंने जो बंदोबस्त किया था, मोटर लगवा करके, उसमें हमको ये एजीओ वालों ने हेल्प किया था, जो जनता वाले। आपको अगेन वहां पर जब मैं गया तो जिलेदार ने मेरे ऊपर एफआई कर दी कि साहब ये सरकार में देखिए। तो अब वो थानेदार और ये पुलिस, मैं तो डीसीपी से बात किया है, एसीपी से। तो उन्होंने कहा साहब अब इनको मैं क्या करूं, सबके प्रोविजन है, आप उन्हीं को सॉर्ट आउट कर देंगे। और को हटाने में 1 साल लगे, क्योंकि वो भी वो आकाश था 2 घंटे 1 घंटे बैठ करके। अब बोला था यहाँ से मोटर हटवा दीजिए, यहाँ से हटवा दीजिए। तो मैं रात को मोटर चलवाना शुरू कर दिया। मैंने कहा रात को ये 11 बजे 10 बजे सब दारू वारू पीने चले जाते थे।
तो मैंने कहा 10 बजे से लेकर के सुबह 4-5 बजे तक, उसमें भी आकर के बीच में किया था, लेकिन वो जमीन सुरक्षित है साहब। और अब वहां पर हम लोग कुछ वहां पे कार्रवाई कर सकते हैं। और खोड़ा के लिए दैट इज द ओनली लंग बोलिए, वही एक फेफड़ा है जहां से ऑक्सीजन खोड़ा को पूरा मिल सकता है। जी, अन्य साथी भी प्रश्न कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे सबसे वरिष्ठ श्री कमल टावरी साहब कर रहे हैं, और वो भी कमल टावरी साहब को मेरा प्रणाम बोलिएगा, हमारे मित्र हैं हाँ, कमल फैजाबाद टावरी के। भी अपना वक्तव्य रखेंगे। और अन्य साथी इसमें जुड़े हुए हैं, कई सारे साथी अभी छोड़ गए। इसमें हमारे वीरेंद्र मलिक साहब हुए हैं, पत्रकार हैं। श्री राय जी जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं पुणे से। प्रदीप जी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। डॉक्टर कमल टावरी जी हैं, और बलदेव राज सूद जी हैं हिमाचल से। प्रोफेसर एस के शर्मा जी हैं, और भी कुछ साथी थे। इनमें से एक थे सुरेंद्र जी, जो कि आरएसएस के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के। और एक अमित श्रीवास्तव जी थे, ये दिल्ली बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा भी और 2 साथी थे। तो सभी का धन्यवाद। और प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पर काम करने में दिक्कतें आती हैं, उसको कर्नल साहब ने देखा है और उनसे लड़कर एक मॉडल बनाने का प्रयास किया है, जो बना भी है। बलदेव जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रोफेसर अस्किमा जी, आप पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी मैं तो ये धन्यवाद, कहना चाहता नमस्कार हूँ। सभी साथियों को। अभिषेक जी बहुत बहुत साधुवाद कि आप बड़े अनुभवी और मैं कहता हूँ संघर्षशील और सफल साथियों को यहाँ बुला रहे हैं। कर्नल साहब को बहुत बहुत बधाई कि मैंने जितना मैं सुन पाया, थोड़ा सा आई एम सॉरी आई वाज अ बिट लेट इन जॉइनिंग, बट देन लगभग 10 वर्षों या उससे अधिक का संघर्ष है, और बहुत बहुत आप सबको बधाई। मैं चूंकि खुद गाजियाबाद का निवासी हूँ, और खोड़ा इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल लैंड लाइंग ऑलमोस्ट बिटवीन दिल्ली एंड गाजियाबाद। मैं जा चुका हूँ खोड़ा कुछ बार, और मुझे लगता था यहाँ विकास कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है। मतलब मैं तो बस सिर्फ एक तरह से किंग कर्तव्य मुहूड़ रह के मैं वहां से वापस आया। बट देन आई शुड हैव जॉइंड द बैटल प्रोबब्ली इफ आई हैड सम कलीग्स। पर भविष्य में यदि मौका होगा तो मैं, क्योंकि लोकल हूँ, बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ खोड़ा से, और यदि ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जिसको कर्नल साहब वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ ही इज देयर देन आई वुड लाइक टू जॉइन हैंड समटाइम्स। सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। और अभिषेक जी अगेन बहुत बहुत आपको साधुवाद कि आपने ऐसे बहुत जबरदस्त साथियों को जोड़ा। नहीं, मेरा वहाँ कार्यालय है साहब, वहाँ 3 से 4 दिन बैठता हूँ, बिकॉज जब मैं बीजेपी नेशनल हेडक्वार्टर बैठता हूँ, मैं एक सर्विसमैन सेल को देखता हूँ। और स्वास्थ्य क्या, मैंने अब तो बहाना हो गया है कि थोड़ा मैं भी आराम करूं, तो वहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े लिंक दिखाई पड़ते हैं मुझे वहां की। तो कभी और कभी बातें करेंगे, लेकिन खोड़ा में मैं 3-4 दिन केवल इसीलिए बैठता हूँ कि जितने बेसिकली जो नेशनल मॉनिटर के टाइम में मैंने जो काम किया था, इट वॉज ए वेरी चैलेंजिंग जॉब। एंड आपको मैं जिले का नाम तो नहीं इसमें दे रहा हूँ। मैंने एक जिले की मॉनिटरिंग की और उसको 237 करोड़ रुपए की लीकेज दिखाई थी मैंने, आउट ऑफ 550 करोड़। और मुझसे 3 लेटर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लिख के दिया कि आपके पास प्रूफ है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे एक इंजीनियरिंग की टीम कर दीजिए, अभी तो 237 करोड़ का किया, मैंने 300 करोड़ कर दूंगा, मैं दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। इसके बाद लेटर आना बंद हो गया। एंड फिर हमको बताया गया कि आपकी एज हो गई है, प्लीज लीव दिस मॉनिटरिंग सिस्टम। वो मंत्री जी बहुत प्रभावित रहते थे हमसे, 2 साल उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया था, रघुवंश प्रसाद जी ने। ही वॉज वेरी हेल्पफुल। तो हर जगह संघर्ष तो चलता ही रहेगा जिंदगी में, जब तक जी रहे हैं तब तक करेंगे, जब नहीं हाँ। जी बहुत और बहुत धन्यवाद बलदेव जी, आपने। हाँ, मैं बस ये कहना चाह रहा था, मैं अभी मध्य प्रदेश की यात्रा में हूँ। कुछ एक मेरे पॉलिटिकल कार्य रहते हैं, अभिषेक जी वाकिफ हैं उससे, और कुछ साथी भी। कर्नल साहब से भी कल सॉरी आई मीन आदरणीय टावरी जी से भी बात हो रही थी। सो आई वुड बी बैक इन दिल्ली इन couple of weeks and I shall be joining hands with you. Thank you so much. नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत आई वुड धन्यवाद, बहुत बहुत पर्सनली लाइक टू शुक्रिया। मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। जी श्योर श्योर बिल्कुल। श्योर सर, थैंक यू। बलदेव जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपके कर्नल प्रश्न। यूवी सिंह, हाँ, मैं कर्नल यूवी सिंह जी ने वो वहाँ जो खोड़ा में डेवलपमेंट कराई है ना जी,
और इन्होंने जो कहा कि कुछ एमएलए कुछ एमपी जो है इनके काम में रोड़ा अटका रहे थे, तो ऐसे लोगों की रिपोर्ट जो है वो अपने यूपी गवर्नमेंट से करनी चाहिए, और इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको मतलब दंडित किया जाना चाहिए, है नहीं? वो हुई है ना। क्योंकि अच्छे काम में जो विरोध करता है उसका अवरोध डालता है नहीं, वो तो देश का विरोधी है। तो इस प्रकार की अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ काम खड़ा किया। और इस प्रकार के लोग जो है प्रत्यक्ष रूप में राजनीति में आने चाहिए, ताकि राजनीति में जो इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को कुछ अंकुश लगे। तो बहुत अच्छा लगा यूवी सिंह जी ने, कर्नल यूवी सिंह का जो वहाँ फोरम में एक्टिविटी रही है उसका बहुत अच्छा है, और इस प्रकार के उदाहरण सारे देश में जाने चाहिए। वीरेंद्र मलिक जी, आप तो खोड़ा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारे सवाल भी होंगे। हाँ जी, जी, हेलो अभिषेक खोड़ा जी। के विषय में जो आपके प्रश्न हैं आप कर सकते हैं कर्नल साहब से। कर्नल साहब से तो अच्छा लगा, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। ये नाइस काफी मैन, समय नमस्कार मलिक जी। आज तो कर्नल साहब बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। जी जी। हाँ, और आप सुनाइए क्या हाल है? बस ठीक जी है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे, और जी उसमें जी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके जो मोदी जी 1 लाख की जो बना रहे हैं, उसमें आप लोग अच्छे अच्छे लोग, मैं तो निकालता रहता हूँ लोगों को, तो जी जी कोशिश करता रहता हूँ कि अगर हम लोग 2-2 4-4 आदमी भी दे देंगे। हमको हमारे कुछ आईएएस cadre के ही अफसर हमको मिले थे, वो कह रहे थे साहब अगर हर ब्लॉक में आप जैसे लोग काम करने वाले मिल जाए तो पूरा देश इंप्रूव हो जाएगा साल भर के अंदर। बिकॉज ये हाँ मैसेज आती है ना फिर साहब कि तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे कि काम सही होना चाहिए। अगर डॉक्टर सड़क बनी सड़क की गुणवत्ता सही होनी जी का चाहिए। कुछ ऐसा ही प्लान है। वो इसी हाँ प्लान पर पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से काम कर रहे हैं कि हाँ ब्लॉक एडॉप्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैसे पूरे देश में चलाया जाए। और पूरे देश में जो हाँ 6000 से ब्लॉक हैं तो वहां पर हर जगह लोकल लीडरशिप तैयार हो और आप जैसे तजुर्बेकार लोग उनका मार्गदर्शन करें, उनको रास्ता दें, ताकि जो समस्याएं आपने देखी हैं और जिनको फेस किया है वो बाकियों कम होंगी तो, तो लेकिन ब्लॉक कम लेवल पे होंगी या कुछ कोऑर्डिनेटर नहीं होंगी। कनेक्शन तो सही होनी चाहिए। नहीं, धीरे धीरे जी तो समस्याएं तो जब डेवलप करता है क्षेत्र तो धीरे धीरे समस्याएं तो कम होती हैं। कर्नल साहब, मैं जी जी 2001 में और 2 में जब मैं हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्टर था तो जी खोड़ा की मैंने रिपोर्टिंग करी थी, खोड़ा की। हाँ हाँ उस टाइम कम से कम 70-75 इनके वो बने हुए थे, बिहार, संगम बिहार, राम बिहार। हाँ हाँ हाँ, अबाउट 7 यू आर करेक्ट, अबाउट 75 बिहार। 75 से ऊपर ही थे। मैंने एक एक ब्लॉक में हाँ, जाके उसकी कवरेज की थी। एक एक वार्ड में 3-3 4-4 है तो 25 वार्ड समझिए तो 100 के ऊपर भी हो सकता है। हाँ, तो उस टाइम तो काफी समस्या थी, ना सड़क बनी हुई थी, ना पैदल चल सकते थे, पानी भी भरा हुआ था। तो अब लेकिन लोगों से पता लगा था काफी डेवलप कर रहा है खोड़ा। हम्म। और आप जैसे लोग लगेंगे तो मोस्ट प्रोबली और ही डेवलप होगा। मेरे लायक कोई अगर आप काम सौंपेंगे या कोई काम मैं क्या बताएंगे। सोचूंगा, हम लोग जब मिलेंगे तब जरूर बात करेंगे, बिकॉज जिसमें तो बहुत टीम एफर्ट चाहिए और सही आदमी को सही जगह पे लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, दैट्स ऑल। मैं आपके साथ, मैं तो बहुत पुराना जी। जुड़ा हूँ आपके साथ। हाँ तो आपके मैं साथ कई आग्रह मीटिंग। करूंगा प्रदीप जी से और श्री जी से, ये जो विषय है इस विषय पे कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप कर सकते हो, कि इसके कई सारे डायमेंशन हमने भी नहीं किए हैं। ऐसी बस्तियां जहां पर इतना डेंस पॉपुलेशन होती है, जहां साफ हवा नहीं होती है, वहां बच्चों के मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, उनको पार्क नहीं मिलते खेलने के। वहां पर जो नशे के व्यापारी हैं और जो गलत काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की गलत हरकतें और वहाँ का सामाजिक खराब परिवेश कैसे बच्चों के मन पे, मानसिक मनोदशा पे, उनके सामाजिक आध्यात्मिक विकास पे अवरोध डालता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। श्री जी,
इस पर कुछ बात रख सकते हैं और कुछ चर्चा कर सकते हैं, या इससे इतर भी बहुत सारे विषय हैं। कनल श्री साहब जी। को प्रणाम। कनल साहब को जी प्रणाम। धन्यवाद सर। और बाकी हमारे दोस्त कनल तौरी साहब, डॉक्टर तौरी साहब और बाकी सभी दोस्तों को प्रणाम। कनल साहब और मेरा परिचय हुआ था तिहाड़ जेल के सामने। याद आ रहा कनल है। साहब के साथ मैं आम के घर में भी गया था, चाय सॉफ्ट ड्रिंक बैठ के हम लोग पिए थे। वो पहला मूवमेंट का 17 को, एग्जैक्टली 17 अगस्त को। जी जी जी। और बहुत अच्छा काम किया। अब खोड़ा में आप एक्टिव हैं ये मुझे पता नहीं था, मैं आता जाता था तो नोएडा में। इस बार आऊंगा तो जरूर आपके दर्शन होंगे और खोड़ा में मिलूंगा ऑफिस में। बहुत सुंदर काम हो रहा है, तो ठीक, साधुवाद। और धन्यवाद। सहयोगी के रूप में तो हम लोग हमेशा शामिल हैं, मिलेंगे ग्राउंड पे भी मिलेंगे। हाँ थैंक यू। ठीक है सर। नंबर आप ले लीजिएगा शुक्ला जी से तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभिषेक हमारा जॉइंट कनेक्शन है हाँ और हाँ सब हो हाँ। जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमल थैंक तारी यू साहब को श्री भी जी। नमस्कार। कमल तारी साहब को भी नमस्कार। प्रदीप जी, आपका प्रश्न। प्रदीप जी मीडिया मतलब एक साहित्यकार हैं, और साहित्यकार की नजर में इस तरह की समस्या और इस तरह की बस्ती को लेकर एक अलग ही वो होता है। तो प्रदीप जी, आप प्रश्न अगर आपका कोई है तो पूछ सकते हैं। मैं पहले सभी बड़ों को प्रणाम, कमलानंद जी अंकल को, और से शायद अपने कर्नल साहब भी बड़े ही हैं तो शायद अंकल ही हो गए, और जो अंकल और भी दूसरे हैं सबको मेरा प्रणाम बड़ों को। मैं ये कह रहा था कि अभी आज के समय में होता क्या है कि मैं किसी की कोई कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूँ या मेरे राग द्वेष की भावना नहीं है, कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास दिख रहे हैं, परंतु जो नैतिक आचरण है, जो नैतिक आचरण जो आना चाहिए, और जो संस्कारों का जो पौधारोपण बीजारोपण जो आना चाहिए, उसका हास होता जा रहा है। और जो आपने भी अनुराग भाई आपने बात रखी थी नशे की ओर की, वो भी मेरे को बहुत इतनी मार्मिक लगी कि उसका इतनी ज्यादा चैलेंजिंग हो रही है। मैं मेरे क्षेत्र में रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गुटखा नहीं खाया, अरे क्या है गुटखा नहीं खाया तो क्या जीवन जिए क्या? गुटखा तो खाना चाहिए। मतलब उस तरह की मेंटलिटी लोगों की ऐसे है कि अलग ही एक थ्योरी, और लोगों का अलग ही एक जो क्रिएटिविटी जो ये आ रही है, उसको जो ये पार्ट है, इसको जो ये जो पार्टना है, ये जो चैलेंजिंग के साथ में इसको करना है, तो उसके ऑब्वियसली आप लोगों अनुभवी और साथ में हम लोगों साहित्यकारों के द्वारा एक कड़ी बन के वो अच्छा एक प्रकल्प बन सकता है। और उसको आगे से आगे आगे जो संभावनाएं हैं असीम, और उसमें हर से जो आपने खेड़ा बताया था, ये खेड़ा एक नहीं करना है। मेरा ये चिंतन है कि खेड़ा पूरे भारत में खेड़ा बने, हर तरह के रूप में आए, हर क्षेत्र विकास करे, और हर क्षेत्र उसमें आगे से आगे उन्नतर करे, और इसमें कड़ियां जुड़ती जाए और सबके स्वार्थ पूरे होते जाएं, और उसके आगे से आगे उसको एक रोल मॉडल के रूप में सामने आते जाए। ये एक मेरा एक चिंतन और है। बाकी जैसे आप बोलो वैसे ये बात बोलिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोडों का बनाना, सड़क चौड़ा करना, हॉस्पिटल बनाना, अस्पताल बनाना, ये एक पक्ष है, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए और भी पक्ष होते हैं। एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए, बेहतर सोच कैसे लोगों में दी जाए, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा, उनको साफ हवा कैसे मिले, साफ पानी कैसे मिले, तो ये एक नासूर को आपने बैंडेज लगाकर थोड़ा सही किया है, लेकिन उसमें अभी और बहुत सारे काम करके इस नासूर को से खत्म करने के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे, और उसके लिए जो भी सहायता होगी वो हम लोग करेंगे। आखिरी में मैं डॉक्टर कमल टौरी जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना वक्तव्य रखें, और आप से ही हम लोग इस सभा का विसर्जन करेंगे। आप डॉक्टर कमल टौरी जी। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद ये कर्नल साहब को, और बाकी जो प्रश्न या विचार आए, तो एक तो मिलकर कैसे काम करे, क्योंकि अब कोई भी अकेला काम करेगा तो खतरा ही खतरा है। लोकल माफिया
और लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट इतने जबरदस्त है कि अकेले का टिकना लगभग असंभव है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि कैसे कर्नल साहब का जो अनुभव है, ये एक्टिविस्ट है कर्नल साहब, ये होना चाहिए, करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये बात करने के बजाय मैदान में खुद उतरते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। तो इसको अगर नेतृत्वशाला में ले, परिवर्तन की नेतृत्वशाला, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम ही लोग एक्टिविस्ट है। मैंने तो अभी 78 साल का हूं और जहां जहां पोस्टेड रहा, परिवर्तन को गति दी है। ये नहीं कि मैंने परिवर्तन किया, मगर परिवर्तन को गति दी। जैसे अब गाय, गोबर, पेड़, पानी, ग्राम की तरफ, पारदर्शिता की तरफ एक गति का मामला है, डिजिटल इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा कर्नल साहब से जो अनुरोध होगा, एक तो है टीम बनाने वाला, दूसरा कैसे नेतृत्वशाला को बढ़ाने के लिए आप अपने अनुभव, कर्नल सिंह की नेतृत्वशाला, जो अनुभव के आधार पर क्या गलतियां हो सकती है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ खतरा हो सकता है। क्योंकि जीने में होलिस्टिक जो शब्द इस्तेमाल किया, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंगल पॉइंट अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जहां देखो कोर्ट में फंस गए, कहीं डिफेमेशन में डाल दिया, तो वकील भी वैसे, थाना भी वैसा, तो हालात जैसे है वैसे है, फिर भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और कर्नल साहब एक्टिव है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कर्नल साहब कि आप सैनिक सेक्टर के उसमें है, जो भी पोजीशन हो आपकी, फौजी एक वर्ग है जो पूरा भारत को जानता है, हिंदी जानता है, पेंशन भी जानता है, डिसिप्लिन भी है। अगर अपन फौजियों को विश्लेषण के साथ नेतृत्व और विकल्प, इसके लिए लीडरशिप के प्रोग्राम चलाए, तो अभिषेक जी है, आप है, मैं अलग से बात भी कर ले, एक नेतृत्वशाला, परिवर्तन की नेतृत्वशाला, चुनौतियों में रास्ता निकालने की नेतृत्वशाला। हम लोग प्रॉब्लम्स को चैनलाइज, वो तो कर रहे बोल, मगर उस पर एक्शन पॉइंट करने वालों से सीखो, नेटवर्क बनाओ, और अकेले मत मैदान में उतरो, ये मेरा पक्का मत है। तो बहरहाल अभिनंदन करते हुए कर्नल साहब का, मैं यही कहूंगा कि अपने को अलग से, अभिषेक जी, आप, मैं और भी जो इंटरेस्टेड हो, अपने को एक्शन प्लान देना चाहिए कि हम जैसे है वैसे है, उसको गति देने वाला हमारा एक अभियान है, सोसाइटी टू एक्सेलरेट रैशनल थिंकिंग स्टार्टअप। और इन्होंने जो ब्लॉक की बात किया, कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रति ब्लॉक कम से कम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिससे निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जा सके, तो करंट पैदा होगा। केवल निगेटिव 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 किया तो करंट नहीं पैदा होगा, क्योंकि पॉजिटिव के बगैर करंट नहीं होगा। तो आइए मिलकर इस पे चिंतन करते हैं, और अपने अपने एरिया में हम लोग कैसे इंक्लूसिव विकल्प बेचने का धंधा, इंक्लूसिव, जिसमें लोकल लोग भी है, महिलाएं भी है, युवा भी है, पारदर्शिता भी है, अपन मिलकर काम करेंगे तो गति बढ़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कर्नल साहब का नंबर जरा दे दे, या मेरा नंबर दे दे, जी बिल्कुल, 9373360006, तो अपन अलग से भी बात करेंगे कि मैं मिलकर भेज कैसे दूंगा। उंगलियों की मुट्ठी बने। चैलेंज ये है, अलग अलग करते हैं, ईगो बहुत है, घमंड बहुत है, एकांगीपन बहुत है, दुश्मनी बहुत है। हम कैसे मिलकर ज्यादा बदलने के चक्कर में पड़ने के बजाय एरिया ले ले, और उसमें जो फौजी वर्ग है, वेल मीनिंग लोग है, युवा लोग है, महिलाएं हैं, उनके साथ ब्लॉक में, विलेज में बड़ी लाइन बनाने का अभियान केवल आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, मिलकर काम करेंगे। मैंने 3 पॉइंट टावरी साहब, एक ही बात है, आपको मैंने साधु वेश में देख के बहुत प्रसन्न हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जरा सा आप उसको ज्यादा एनर्जाइज कीजिए, उसी के थ्रू आधा काम हो जाएगा संस्कार का। कल्चर एंड दिस थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको टावरी साहब और टावरी साहब को आपका नंबर प्रेषित कर दूंगा,
और कल 8:15 हम लोग फिर मिलेंगे। कल का विषय भी डेवलपमेंट का ही है और अपवाद पर ही चर्चा होगी। कल एक और महत्वपूर्ण हमारे साथी हमसे जुड़ेंगे 8:15 और इसी क्रम में ये कार्यक्रम चलेगा। आप सभी ने समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। और कल हम अभिषेक जी कल 8:15 शाम को ना? जी 8:15 शाम को। हाँ, तो मुझे तो इंक्लूड कर लीजिए। बिल्कुल 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 मिलते हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू साहब सर। को और कर्नल साहब को सबको प्रणाम। थैंक यू सर। प्रियंका। नमस्कार सभी को, बहुत अच्छा सत्र, धन्यवाद। धन्यवाद। इसको ये गर्म कर दीजिए ठंडा एकदम, और ये आधा कर दो, ये भी जाओ आधा। हाँ जी, दीजिए खाना। अभिषेक भी, और कुछ मेरे से कोई बात आप करनी हो तो, आपको कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए मेरे से कोई। अभिषेक भी है। हाँ, कुछ प्रश्न और करना हो तो, कोई बात करनी हो तो ये बोलो। चलो।
घर पहुंचा ही था और फिर इसके बाद तुरंत हमने इसको ऑन कर दिया। तो जैसे ही खत्म हुआ तो हमने कहा थोड़ा सा आराम कर ले। नहीं ऐसे फोन पे ये बात थे, दूसरे फोन पे बात कर रहे थे।